Hello everyone, I hope that you are doing great. So I am uploading the part 3 of State of Economy, that is chapter 1 of Economic Survey 2021. Again the chapter is very lengthy, and please do watch it, and do subscribe to my channel and do share to all of your friends so that the people who want to learn many concepts, they will be helpful in that. Okay, and thanks a lot for giving me that kind of response. I do get your messages and mails, and happy to see that you people are following me. Do follow and get the concepts clear. And this is me, Sayyid Shujatullah. Let us go ahead. So, hi everyone. So, I hope that you are doing well. Let us go ahead. Right. So, all these we have done. So, if you want to be a part of my Zoom classes, what best you can do is you can make a call to this number, or you can just mail me so that I will be happy to help you out. So in our last class we have done the spread of pandemic across the world, that was already over, and we have seen all these beautiful charts, and we have also seen the how COVID pandemic has affected us, what are the confirmed cases, the deaths, and also we have seen that active cases and how the doubling time of the cases have increased. So once upon a time, the during the month of March in 2020, the number of cases used to double in every 3 days. Over a period of time till we come to December, the number of cases doubling, it was around 249 days. Doubling of cases will be around 249 days. Means we have done really great with regard to health systems. Fine. Then we have also seen that how the pandemic has affected to the various regions of our country. So we have discussed about the central region, eastern region, northeastern region, and how they have fared well. All of these data we have done in our last class. Okay. So right, see, and total confirmed cases per lakh. So this is the region most impacted. Most impacted means every 1 lakh 1,226 cases. 1 lakh 1,000 one every for every 1 lakh 1,226 cases were there in this region, and followed by this region, then this region, then this region, then this region, and this region. This region is more or less very less affected. Very less affected. Okay, means number of cases per lakh has been very less here, like close to 342 only. तो बहुत कम आए थे यहाँ पे केसेस, यहाँ से कंपेयर करें तो ये हम पूरे पढ़ चुके हैं, हम जस्ट रिवाइजिंग सो दैट यू विल ब्रश अप. डेथ्स भी देखो आप, टोटल डेथ्स पर लाख, तो यहाँ पे ज्यादा डेथ्स हुए. ओके, गुजरात, okay, the southern part of Gujarat and the total Maharashtra, every 1 lakh we have seen around 28 cases, 28 people died. 28 people died, and you can see the data has been released by Ministry of Health and Family Welfare. So ministries, you know that UPSC has the habit of asking, yeah, ministry release kon kare data, etc., who launches this scheme, who is implementing the scheme program. So you should be aware of that data aa raha kahan se. The zonal councils are defined by, as per these, the zones are defined as per the zonal council. ये भी आप याद रखो. Okay, fine. So let us go ahead. So ramping up testing, this is also we have done in detail in our last class. So please, those who are watching me for the very first time, do watch the last two videos so that it will be a continuation to you. Okay. Chalo. Fine. This also we have already learned about this. Okay. Yeah, this also we have done in our last class. Okay. This is our reasons for fall in consumption and investment. What were the reasons that led to the fall in consumption? You may know that consumption is nothing but whatever we are eating. Why there will be a fall in our consuming the resources or necessities? Because your income is, you don't have the income, and because of the pandemic, a lot of the people has lost their jobs, so their demand will increase, demand of consumption will increase, right or wrong? Yes. Okay, that is one case. So demand side shocks means if the consumption and demand are very correlated, means where they are most elastic. If the demand is more, consumption will be more. Okay, if the consumption is more, it means demand is more. So very common variables here, they vary together. So I have to tell you that this particular slide we have already discussed in my last video, so I don't want to repeat it again, so please watch it.
This we have to see. Twin economic shocks by the pandemic. There was a question in the UPSC mains in the year 2017 or 18, I don't remember exactly, but there was a question with regard to twin balance sheet problem. What is that? Twin balance sheet problem. Okay, by taking the clue from this particular question, you can expect that in our mains examination there would be a question that may come across that you may get in the examination with regard to twin economic shocks. Okay, what are the two shocks that has been severely, okay, caused by pandemic? So because twin balance sheet is nothing but government is also debted and private sector is also debted. Means government is also borrowing, private sector is also borrowing. Government is also not doing profits, private sector is also not doing profits. So government is taking from RBI and private sector is taking from banks. If they're not doing profits, how can they repay to the banks, and whatever the money will be there, how it can be channelized for the development, how it can be channelized for the development? That is not going to happen. So that was the question in the economic survey and it was directly asked in the examination. आप ये बात याद रखो, ठीक है? So यहाँ पे what we are going to learn about is twin economic shocks by the pandemic. तो क्या थे? एक तो डिमांड शॉक थे, अनदर वन इज सप्लाई शॉक. तो ये दो शॉक्स थे. फर्स्ट इज, देखो डिमांड शॉक क्या था? reduce investments. अगर मैं कुरकुरे, एक्लेट्स, मूवीज, स्पास, जिम्स, इफ आई डिमांडेड तो वो लोग प्रोड्यूस करते. ओके, इफ द डिमांड इंक्रीजेस तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी आके दे विल प्रोड्यूस एंड गिव इट टू मी, राइट और रॉन्ग? बट डिमांड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स हुए, क्यों हुए? ड्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी. मेरे पास कोरोना में 1 लाख रुपए थे, राइट और रॉन्ग? 1 लाख आई वाज हैविंग. So I was saving it because फिर job मिलती नहीं मालूम. So why should I spend that money? And I kept it as savings, right? So when I am not spending, it means what? I am not consuming anything. If I am not consuming, I am not creating any demand. If you are not creating any demand, how can the investment will come? So you will see the reduction in investments or not? Yes, you will see it. So that is what it is. I hope you got it. Okay, so to reduce investments because there is a uncertainty about the future, like कब कोविड जाता, फिर कब आता, ओके सेकेंड वेव भी है बोल रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैं पैसे खर्च करा नहीं, डिमांड को पुश करा नहीं, प्रोडक्शन हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं. देन reduce demands for non essentials also due to social distancing and precautionary savings. तो नॉन एसेंशियल्स जो भी थे, जिम जाना था, इनका भी डिमांड कम हुआ क्योंकि नॉन एसेंशियल था, ये घर पे भी कर सकते. बट जिम में सब इंस्ट्रूमेंट सब पकड़ते, तो मैं भी जाके पकड़ूंगा तो मुझे भी कोरोना आ जाता. सो दैट इज व्हाई व्हाट आई डिड इज आई टुक ए प्रिकॉशनरी मेजर एंड आई डिड नॉट इवन did not even did spending on what non-essential items. I did not go to movie. I did not go to any public place because of the fear of what? Contacting the corona. Okay, and reduced demand is also because of what? Because of social distancing norms and very precautionary savings. This is already we have learned. 2 times mention करें, that's not an issue. Reduction in consumption due to wages and income loss. ये तो मैं बोल ही दिया आपको. Okay, so यहाँ पे take away points are very common. There is क्यों हुआ? Reduce investments क्यों हुआ? Because पहले तो क्या था यहाँ पे in increase in future uncertainty. Future में क्या होने वाला है? No one knows. Future uncertainty. उसके बाद में reduce demands because of social distancing के वजह से भी, social distancing. And third one is people lost what? Wages and income was also lost. Wages and income was also lost. So these are the takeaway points from the demand shock. So demand को ऐसा shock मिला. कहाँ से मिला? Reduce investment से मिला, reduce demand से मिला, reduce consumption से मिला. Remember this point. Okay. Reduce investment इसलिए हुआ because अनसर्टेनिटी फ्यूचर में. मैं अगर कुछ प्लांट लगाऊंगा, फ्यूचर में फैक्ट्री लगाऊंगा या एक दुकान लगाऊंगा, कोई खरीदते नहीं खरीदते मालूम ही नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट रोक दिया. रिड्यूस डिमांड्स भी मैं रोक दिया, क्योंकि मैं डिमांड करना भी रोक दिया, क्योंकि मैं खर्च करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट हो जाता कोरोना का, तो मैं फिरने वाला आदमी फिरना बंद कर दिया, खाने वाला आदमी खाना बंद कर दिया, घर में करूँ सब ऐसे. कंजम्पशन भी क्या हो गया? कम हो गया बिकॉज वेज एंड इनकम लॉस हो गया. अब सप्लाई शॉक्स क्या है? लेबर का सप्लाई शॉक मिला ही, बिकॉज लेबर्स they did not come to the work, they moved there, they hardly
was very much they had a problem even to reach their own native places. ठीक है, so labor को भी supply shock मिला. ओके, लेबर का सप्लाई शॉक प्रोडक्शन यूनिट्स को मिला, तो लेबर गई ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा कहाँ से? ओके, एंड सेल्स लॉ से, सेल्स लॉ क्या बोला? से दिस सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, तो सप्लाई करे तो डिमांड भी बढ़ता, लाइक दैट सेल्स लॉ से. सेल्स इज इकोनॉमिस्ट, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट. सो सप्लाई करने का भी यहाँ मौका नहीं है ना. फिर यहाँ पे ये प्रिंसिपल को, लेट अस ट्राई दिस प्रिंसिपल, लेट अस एक्सपेरिमेंट विद दिस प्रिंसिपल. दिस आल्सो डिड नॉट हैपन. व्हाई? बिकॉज लेबर सप्लाई था ही नहीं, तो वो एक शॉक मिला. Inability to work from home in non-essential industries. So you know that all the industries, all the sectors does not mandate that you can work from home. It's not possible. हर एक का जॉब घर पे बैठ के करने से नहीं होता. ओके, लाइक मेरी टीचिंग है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है. ओके, लाइक अब डेंटिस्ट है, अब डेंटिस्ट ऑनलाइन क्या करेगा? बार्बर है, बार्बर ऑनलाइन क्या करेगा? तो ये तो है नहीं. मूवी है, अब घर में बैठ के तो देख नहीं सकते, तो नई मूवी तो जाके देखना पड़ता. सो मेनी सच थिंग्स आर देयर. ओके, जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ नहीं. Inability to work from home is non-essential industries. Okay, and labor के सब शॉक से, बिकॉज ऑफ द लेबर शॉक, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स लिंकेजेस. तो जो सप्लाई आराम से हो रही थी, ओके, ऑल ओवर द इंडिया सप्लाई आराम से हो रही थी, बिकॉज प्रोडक्शन हुई थी, सप्लाई होती. अब लेबर सप्लाई ही नहीं है, व्हेन लेबर सप्लाई इज नॉट देयर इन द प्रोडक्शन, इन द फैक्ट्रीज, इन द कंपनीज, इन द इंडस्ट्रीज, देन हाउ द सप्लाई कैन बी सीमिंगलेस? सीमिंगलेस हो ही नहीं सकती, फ्लॉलेस हो ही नहीं सकती. सो रुक रुक के वी गॉट अवर सप्लाई. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्विन इकोनॉमिक शॉक बाय द पैंडेमिक. ठीक है, देन तो यहाँ पे एक छोटा चार्ट बना दिया मैं फॉर योर इजी रिमेम्बरेंस. वेजेस एंड इनकम लॉस हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड डिक्रीज हुआ. इम्पैक्ट ऑन अग्रीगेट डिमांड. अग्रीगेट डिमांड मीन्स सबका डिमांड, किसी किसी के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं. तो aggregate means taking the demand of each and every adult group or each and every demographic group. Okay, हर एक के अलग डिमांड्स होते हैं. सो इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड हुआ, यस, डिक्रीज हुआ. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल लिंकेजेस ये भी इफेक्ट हुए, दैट इज ऑल्सो फाइन. तो एफडीआई आने वाला नहीं आया, एफआईआई आने वाला नहीं आया, इंटरनेशनल से गुड्स आने के थे नहीं आए. ऑल दिस हैपन, डैम्पनिंग what global activity and pushing commodities prices down. Okay, ultimately this happened. तो प्राइसेस कम हो गए चीजों के. हाउस होल्ड डिमांडेड लेस. यू नो दैट हाउस होल्ड डिमांड बहुत लेस करे, इसलिए प्राइसेस कम होते हैं. व्हेन यू डोंट बाई प्रोडक्ट्स, सपोज आप यहाँ पे जिलेबी बेच रहे हैं, कोई आ रहे ही नहीं, आप 2 रुपए का बोर्ड लगा दिए, 2 रुपए का बोर्ड, कोई आ रहे नहीं, आप क्या करते? दोपहर तक 1.5 रुपया कर देते, शाम तक 1 रुपया कर देते, राइट और रॉन्ग? सो यहाँ पे भी वही हुआ. व्हाट हैपेंड इज, सो बिकॉज ऑफ दी सप्लाई तो था नहीं, तो जो भी सप्लाई था, the prices nobody is buying, because I have told you that uncertainty situations are there. अभी कोरोना जाता नहीं जाता, मैं सेविंग्स कर लिया, मैं स्पेंड करना ही नहीं चाह रहा हूँ, तो ये वजह से because of these things, so what happened, prices came down because household demanded less. 10 कुरकुरे खरीदने का महीने में 1 कुरकुरा खरीदा मैं, क्यों? पैसे बचाना था. फॉर्म्स स्टार्टेड गेटिंग व्हाट, रिड्यूस रेवेन्यूज. जब मैं प्रोडक्शन 10 जलेबी का करा, लिए लोग 10 ओनली, 10 जलेबी लिए, 90 तो वेस्ट हो गए, तो मेरे पास रेवेन्यू भी कम आ गया, राइट? सो व्हेन रेवेन्यू becomes less, what I do, I will decrease the activity in the firms, reduced activity in the firms, and again जब 10 लोगों को मैं सैलरी दे रहा था, अब मैं डिमांड नहीं है कि नहीं रहने की वजह से 5 लोग को निकाल दिया, एंड ओनली 5 पीपल आर देयर. सो अगेन दिस हाउस डिमांडेड लेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस हाउस होल्ड इनकम. इनकी भी इनकम में कम कर दिया. ओके, मैं 5-10 लोगों की सैलरी क्या कर दिया, कम कर दिया, और आई विल डू व्हाट, आई विल ले ऑफ. ले ऑफ इज नथिंग बट टेम्पररी asking a workman to not to come to the factory for some period of time because of what unforeseen situation, उसको बोलते lay off बोलते, that is called about lay off. तो अभी इतना सब हो गया, all these activity happened, so then government should do something, right? Yes, government has given its response. Government wanted to flatten the recession curve, flatten the recession curve, जो कि suppose ये अपनी economic activity है, okay, ये economic activity है, ये growth rate है, ओके, 1%, 5%, 3, लाइक 7%, 9% इन दैट. तो हम यहाँ पे है, रिसेशन है, 1% पे है. ओके, यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है. दिस इज व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ. सो
ये जो है, so here like recession should be like in this way. We will take in opposite manner. Just wait for a second. We can do it. Not at all an issue. This is हमारा average growth rate है. Okay, this is our average growth rate. यहाँ पे हम 5% पे economy grow हो रही. Recession बोलते हो. We are going what? कम 4% पे आया. Then और कम 3% पे आया like that. This is our recession. तो हम नीचे जा रहे हैं. Production activity, economic growth और production activity क्या हो रही? कम हो रही. So we don't want it. We want it to be flattened. We want it to be what? Flattened. ऐसा. यहाँ पे पहुंचना है. कहाँ पे पहुंचना है? यहाँ पे पहुंचना है. ठीक है. So I hope that you understood it. Let us discuss the rest of the things in our future class. Thanks a lot. Right. So let us continue our lecture. So till here we were already done in our last slide. Right. So this is already done. I have clearly explained you the total flow chart and hope that you have got it. If you still did not get the concept, you can WhatsApp me, you can mail me. I will be more happy to help you out. Fine. So now we are going to discuss about sectoral distribution. You know that our economy is divided into three sectors. Okay, agriculture, industry, and service. You're all well aware of this fact. Okay, so what I'm going to discuss here is sectoral distribution by GVA share. GVA is nothing but our, at this point of time, you just imagine that GVA is nothing but your GDP. So we are trying to find out what are the sectors and subsectors, how much they are contributing to the GDP. How much they are contributing to the GDP. ये जो GVA है, could also be called as GDP. I'm saying that could also be called as GDP. Okay, so ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन में ये सेक्टर्स का कितना योगदान है, कितना इनका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. Okay, and it is like it's not only we are going to see that percentage of various sectors in GDP. Not only we are going to see, we are also seeing what workers who are also involved in what in these activities. कहाँ कहाँ पे लोग कितने काम कर रहे, कौन से सेक्टर में ज्यादा कर रहे, कौन से सेक्टर में कम कर रहे. दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न टूडे. ठीक है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, द सोर्स इज वेरी कॉमन. मॉस्पी, Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, this particular ministry will come out what GVA related aspects. GDP कैलकुलेशन भी इनो करते. इनके अंदर एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड एज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो दीज पीपल विल गेट व्हाट GDP फिगर्स, सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन है, सो एंड सो फोर्थ. राइट. सी, so here let us take our agriculture and allied activities. Okay, agriculture and allied activities like 17% they are contributing. Right or wrong? 17% they are contributing. ये 16 है, ये 17% they are contributing. And so share of informal workers are those workers जिसको हम हायर करते हैं but we don't give them pension. उनको पेंशन की फैसिलिटी नहीं देते अपन. उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल 3 साल के लिए हायर नहीं करते. टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न फॉर्म में नहीं होते हैं और इंश्योरेंस की सुविधा भी नहीं होती. सो दीज बेसिक very very important to a person who is working, very very important aspects are not a part of his or her employment. Okay, उनकी जो नौकरी रहती ये पूरे चीजों से डिवॉइड रहती. क्या रहती? डिवॉइड. ओके, सो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं दे आर वर्किंग इन व्हाट इनफॉर्मल सेक्टर. दे आर वर्किंग इन व्हाट इनफॉर्मल सेक्टर. जस्ट लाइक अपने किराना शॉप में जो बच्चे काम करते, बार्बर शॉप में जो बच्चे काम करते, डू दे गेट पेंशन? नहीं. डू दे गेट इंश्योरेंस? नहीं. क्या कॉन्ट्रैक्ट पे करते? नहीं. लाइक दैट. सो सी, शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. सो 90% तक तो हम रखें. So this is our agriculture and allied activities. It is contributing what 15 like 17% to the GVA, nothing but our GDP, and its share is almost like you can expect 22, around 22% of informal workers. Insecure workers, insecure है.
कब निकालते नौकरी से नहीं मालूम. That is called as what? Insecure workers, right? So in the same way, this is how you are going to understand. Manufacturing is contributing around 16%, exactly around 16%, and it is employing around 10%, and 10% of informal workers. Informal workers 10%. See, manufacturing and manufacturing is now you see construction sector. Construction sector contribute very less to the GVA. 8% ही contribute करता, but it has the capability to observe 80% of informal workers. ज़्यादा 80% of informal workers. If government wanted to introduce a policy in order to protect the informal sector, so which sector they have to concentrate first? They have to concentrate on construction sector, because यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा informal workers काम कर रहे हैं, इनके पास ही security नहीं है, इनके लिए schemes लेके आना, इनके लिए स्कीम्स लेके आना. जस्ट लाइक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, इन लोगों के लिए ही है. 12 रुपए दे दो, 330 रुपए दे दो, आपको हम पेंशन देते, आपको हम क्या बोलते सो इंश्योरेंस देते, ओके, लाइफ भी देते, हेल्थ भी देते, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भी है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. सो मेनी सच एस्पेक्ट्स आर देयर. ओके, सो कल को अगर गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों को प्रोटेक्ट करना चाह रही तो दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज वन वेयर मेनी पीपल आर इनफॉर्मल. जो हेड लोडर्स थे, सर पे ईंट ये वो रख के इधर से उधर जाते ना, वो हेड लोडर्स बोलते. वी कॉल देम एज व्हाट? हेड लोडर्स. टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट रहती बिकॉज टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ओके, देखो, माइनिंग एंड क्वायरिंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच? 2%. बट यू सी देयर इनफॉर्मल सेक्टर का इनका शेयर कितना है. अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज arrange the following okay sectors in descending order of employing informal sector. If this kind of question comes, very difficult it will become. This is how the questions will be framed in your examination. So they will give you first descending order है. कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा आना पहले. तो दे विल गिव एग्रीकल्चर एंड अलाइड. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड दे गॉट इट, फाइन, ओके सर, ऑल गुड. देन सेकंड वन यू सी माइनिंग एंड क्वायरिंग, थर्ड वन यू सी कंस्ट्रक्शन, फोर्थ वन यू सी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स. होटल्स. सो अभी ऑप्शंस अपने क्या रहेंगे? ए 1 and 2, B 2 and 3 sorry, we have to arrange, no? 1 2 3 4 2 3 1 1 4 1 2 4 3. Okay, D, I like this will be there. Let us see now. Ab main wo directly the one which is right I will write down because I have not seen what is right what is wrong. Fine. So सबसे ज्यादा क्या है? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का क्या है यहाँ पे? 3. कंस्ट्रक्शन का क्या है यहाँ पे? 3 पे है. उसके बाद इफ यू सी माइनिंग एंड क्वायरिंग दिया, माइनिंग एंड क्वायरिंग एम्प्लॉइंग हाउ मच? 40. तो माइनिंग एंड क्वायरिंग ऑप्शन इज 2 3 2. देन होटल एंड एग्रीकल्चर इज देयर. होटल का तो बहुत कम है, एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. सो आई विल गेट व्हाट? 1 1. होटल का सब में लास्ट. होटल कहाँ है? 4. होटल कहाँ है? 4. सो दिस इज माई आंसर. In this way they can ask, or else they can also directly ask you that according to economic survey, which one of the following sector contributed highest with respect to what? Informal sector employment. Then you can put what? Construction as your answer. Okay, and here you see that trade, other services, electricity, you can say that trade, or ये पूछा तो ये नहीं पूछा, ये पूछा तो ये नहीं पूछा. So remember the least the sector which contribute least for the employment of informal sector, you can understand trade and repair and electricity. अगर इंटरव्यू में, because agriculture is very important, no, agriculture के बारे में पूछता, economic survey है ना, agriculture के बारे में पूछता कि how much percentage of informal sector will be employed in agriculture, ऐसा पूछता. then you should be very aware. सर देखो एक economic survey आया था, उसके हिसाब से 22%, उसके हिसाब से क्या है? 22%. fine. So 22% is there. So minimum you should have the knowledge, so that once you tell this answer, no sir, according to the economic survey there is 22% of workers are present in what? Informal sector, means the interviewer will not ask you anything because you have given a proper answer. sir को दे दिया, अपना काम खत्म. अब उन्हें क्या पूछेंगे? उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते. So this is how you have to learn, my dear students. सुन लिए बच्चा पार्टी आप लोग. Okay,
अब मेरा आपको पता है, मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, अब मेरी आदत ही हो गई कि अब लंबा खींचूं, तो आप खींचते रहता तो आप पढ़ते जाओ, सीख लो, सीख लेगा है। ओके, I hope that I will definitely complete the economic survey because before we go to the prelims. Okay, I will also give you MCQs, a proper session I will be dedicating to MCQs on this particular first chapter. So वैसा तो भी पढ़ लो, ऐसा तो भी पढ़ लो, both are same. Okay, then supply chain disruptions impacted the flow of agriculture goods. ये we have seen in our last video. Supply chain में disruptions हुए, सप्लाई जो फूड ग्रेन सप्लाई इंडिया में हर जगह पहुंचना, ये क्या हो गई, डिसरप्ट हो गई, मीन्स रुक गई। क्यों? लेबर एक्चुअली काम करने वाले लेबर्स थे नहीं, लेबर एक्टिविटी कम हो गई, बिकॉज कोरोना है बोल के सब घर में बैठ गए, सोशल डिस्टेंसिंग सो फॉलो कर रहे, कोरोना का रिस्क कोई लेना नहीं चाह रहा। ओके, वो भी हो गए। और स्टेट एंड स्टेट से ट्रांसफर करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, बैरिकेड लगा दिए, लाना आना थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया। उससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर flow of agriculture goods impact हो गए, leading to high food inflation. Whenever there is a less supply, automatically you will see what, inflation, common sense, and adverse initial impact on some major agriculture exports. So अब तो हो गया, एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हो गए, बिकॉज ऑफ लेबर नहीं थे तो प्रोडक्शन भी नहीं था, एंड जो भी प्रोडक्शन हुआ it is not able to reach to the different areas of our country. Because of that, many areas have also seen what, inflation. This is what the point given in the survey. The manufacturing sectors was very hit hard, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ हुई, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया इसमें फर्स्ट क्वार्टर में, बट थोड़ी 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 पिकअप हुई, बिकॉज 4 क्वार्टर रहते एक फाइनेंशियल ईयर में, 4 क्वार्टर रहते, अप्रैल 1 से मार्च तक, अप्रैल 1 से मार्च 31 तक 4 क्वार्टर रहते, 4 12 महीने का है ना ईयर, 12 महीने का 4 क्वार्टर, 4 3 12, तो हर 3 महीने को 1 क्वार्टर 1 बोलते, लाइक अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। तो क्वार्टर वाइज हम देखते फिगर्स, एंड वी कैन रिवाइज इट लेटर ऑन, हम रिवाइज बाद में करते, बिकॉज अभी दिस इज थिंग वी फॉलो। तो आपको समझ गए होंगे, मैं डिटेल में बोल दिया आपको, राइट राइट, दैट इज ऑल ओके। The construction and service sector were hit the hardest. ये आपने को proper statement for the examination है। Okay, during the pandemic, which one of the following sector has been hit very severe, means construction and service sector were hit hardest, because you know that सर्विस सेक्टर एक ऐसी जगह है जहां पे आपको कांटेक्ट करना पड़ता, आप जिम जाओ आपको कांटेक्ट करना पड़ता, आप स्पा जाओ आपको कांटेक्ट करना पड़ता, आप बार्बर की दुकान पे जाओ आपको कांटेक्ट करना पड़ता, आप बस में जाओ ट्रांसपोर्टेशन में 10-100 लोगों के साथ बैठना पड़ता, आपको रेलवे में जाओ वहां पे भी जाना पड़ता, आपको आपको जहां पे भी सर्विस रहती ना वहां पे कांटेक्ट ज्यादा होता। अब गुड का क्या है भाई, यूं ले ली यूं आगे, सर्विस क्या है, थोड़ी देर टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि जाते ही ले लेते सर्विस, यू टेक्स टाइम आल्सो, यू विल कंज्यूम दिस सर्विस, नो इट टेक्स टाइम आल्सो। सो तो फिर ऐसे सर्विसेज, ऐसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी लोग आते रहते जाते रहते, तो ज्यादा हिट हो गया वहां पे, प्रोडक्शन वहां पे उसका कंट्रीब्यूशन बहुत सारा कम हो गया। ठीक है, आई होप दैट दिस proper chart is very clear. If you don't understand, please watch it again, or else you are happy to reach me out, I will be helping you out. ठीक है, now let us go ahead. Sectoral impact of COVID-19 in India. ओके, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को क्या हुआ देखेंगे। देखो, यू ऑलवेज यू नो दिस पॉइंट दैट दिस इज लास्ट ईयर ओनली टिल अक्टूबर वी आर हैविंग द डेटा। ओके, इंपोर्ट्स ये जो पूरा है ना, इंपोर्ट्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोल, तो जो लमसम खरीदते ना, जो लमसम खरीदते वहां पे इन्फ्लेशन देख रहे हैं यहाँ पे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज समझो भाई मैं एक होलसेलर हूँ, मैं एक 1000 टन हजार क्या बोलते हैं 1000 कार्टून के टी शर्ट्स लिया, मैं होलसेलर हूँ। ओके, कहाँ से लिया, मैं बाहर से लिया, आउट ऑफ द कंट्री आई हैव बॉट 100,000 कार्टून्स ऑफ अपैरल्स आई हैव इंपोर्टेड। तो ये बिकॉज ऑफ पैंडेमिक की वजह से ये जो 1000 कार्टून्स दैट व्हाट एवर आई हैव इंपोर्टेड, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया या नहीं हुआ, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ तो फिर मेरा सेम आई विल शिफ्ट दैट पर्टिकुलर इंक्रीज अमाउंट टू आउट, आपके ऊपर ही डाल दूं मैं अब टी शर्ट आपको अगर 100 रुपए मिली तो मैं आपको 100 रुपए में बेचता हूँ, अगर मेरे को 200 रुपए मिले तो मैं 200 रुपए में बेचता हूँ, राइट और रॉन्ग, मैं क्यों कम में बेचूं, मैं तो बेचूं नहीं कम में, अंडरस्टूड, दैट इज व्हाट इज जनरली हैपन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट होलसेलर, होलसेलर मीन्स जो लमसम खरीदते ना, उनके पास ये एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में व्हाट इज द
फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ, फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो ये ब्लू लाइन फर्टिलाइजर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन रिलेटेड फर्टिलाइजर्स के और एनी अदर फर्टिलाइजर्स, ये क्या हुआ, इनका इंपोर्ट क्या हुआ, तो कहाँ है ब्लू लाइन, देखो -5 था जनवरी में, इंपोर्ट तो इतना डिक्रीज हो गया था, डिक्रीज हो गया था, अब देखो बढ़ते गया यहाँ तक आ गया। यहाँ पे यू नो दैट अक्टूबर में पीक हो गया था। ओके, देन अगेन इट इज द इंपोर्ट्स आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। आपको याद क्या रखना है, with regard to fertilizer and nitrogen compounds, the import has first of all increased and reached its peak in October 2018. Okay, then slowly they gone down and October 20 तक कम हो गया। Okay, and it becomes what क्या बोलते हैं, ये इन्फ्लेशन जीरो हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ा 5% ज्यादा हो गया, उसके बाद में कम हो गया। दिस इज हाउ द सेंटेंसेस कुड बी मेड। आप ऐसे इस तरह से हर चीज आप समझने की कोशिश करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल द थिंग्स। नाउ यू फॉरगेट अबाउट दिस मिक्स फर्टिलाइजर्स, लेट अस सी वेरी गुड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। ऑरेंज को देखेंगे। ओके, ऑरेंज जनवरी 2017 में इन्फ्लेशन तो था ही नहीं, सस्ते में मिलता था ये -5। ओके, तो ये बड़ा 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 इट बिकेम व्हाट, इट बिकेम टिल हियर, यहाँ तक इंक्रीज हुआ। कहाँ पे इंक्रीज हुआ, जनवरी 2009 में इंक्रीज हुआ, फिर कम हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, अगेन इट पिक्ड अप, अगेन इट picked up. Remember this point. So in this way you can understand that inflation was more or less everyone has touched all the, and agriculture imports में majority of the things we have here they have given with regard to what fertilizers related aspects only they have given. तो fertilizers के बारे में ही दिए और कुछ नहीं दिए। और you can able to see that जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स है एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के, ऑल ऑफ देम हैज रीच देयर पीक ये अक्टूबर और ये जनवरी, 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ऑफ 2019, ये 3-4 महीने में पीक पे आए, देन दे डिक्रीज एंड इंक्रीज, दैट इज ऑल हैपेंड। सो आपको ऐसा तो क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव टू डिस्कस द ग्राफ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट। अमोनियम फास्फेट वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, इनका तो बहुत ज्यादा ही हो गया, पहले तो बहुत सस्ते में बिकते थे एंड इट बिकेम व्हाट वेरी वेरी ह्यूज, सो इट टच 20% ही ज्यादा हो गया, 20%। अगेन इट्स कम स्लोली गेटिंग डाउन नीचे आ गया एंड अभी ये कम में बिका। ओके, जस्ट सी दैट हाउ the fluctuations in the prices of agriculture imports you have seen through a graph. So all of them has touched to 5% in and around October and January, and from that onwards they are continuously decreasing then, and it became what, almost everyone is around what, zero, everyone is around what, zero। ये जो ब्राउन वाला है मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इट इज अगेन इट, ये यहीं पे है, ये नहीं डिक्रीज नहीं हुआ, इट डिड नॉट डिक्रीज 5%। okay, 5 or 4.5 like that, you can understand. Okay, समझने आए, you have to write down all this in your book, if you are writing it you can write down what I am discussing. Then agriculture exports, agriculture export USD million पैसों में है ये। okay, total agriculture exports right hand side, ये पैसे में है, ये क्वांटिटी है, फाइन। तो टी, where is our tea? So this is our tea, ब्लू, पर्पल, तो ये नो तो स्टैग्नेट है। लास्ट ईयर बोल तो 4 महीने पहले सितंबर तक इनका यहीं पे 2016 से लेके 2020 तक दे आर लाइक रेंजिंग अराउंड 50 मिलियन पैसे, 50 मिलियन US डॉलर अपन कमाते थे। ओके, सो 250 अराउंड टन्स ऑफ quantity we will generally export. Okay, so what you are going to understand from this graph, अपने take away point क्या है, what is the take away point in this particular discussion? Okay, the takeaway point is agriculture exports. Okay, arrange the following commodities of agriculture in a descending order of their exports, ऐसा क्वेश्चन आता, then you should be very much aware of that agriculture exports में the green one, rice, we exposed at the highest, very very important question, number 1, followed by this yellow color. What is this yellow color? It is buffalo meat, okay, then this is blue color one, spices,
spices, and both of them are in and out the same. Which one is that? Okay, you are having purple, that is tea, and also this orange one, that is coffee. Tea and coffee are like, so you have to know this very sure. Are in the following agriculture exports in the descending order. Then rice comes first, followed by buffalo meat, followed by spices, and followed by this tea and coffee. Tea and coffee. So this is a very important takeaway point. Okay, I hope that you got it. Then CPI. WPI में क्या बोला? होलसेल प्राइस इंडेक्स इज नियर दी होलसेलर्स. इनको कितने में मिल रहा? होलसेलर्स विल गिव टू व्हाट? किराना शॉप वालास विच आर कॉल्ड एज व्हाट? रिटेलर्स को देते हैं, सुपरमार्केट्स वालों को देते हैं, ये लोग हमको देते हैं. यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस राइस, वी कॉल इट एज WPI. यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस राइस, इट इज कॉल्ड एज CPI. It is called as CPI. Okay, so when we discuss the inflation chapter, I will tell you in detail. But अभी तक तो ये याद रख लो आप. दो CPI क्या? फूड परसेंटेज. CPI फूड रिलेटेड. तो फूड इन्फ्लेशन सी टच टू जीरो ऑल्सो. देखो जीरो यहाँ तक आ गया. कब? 2018 to 19. very important point. 2018 to 19. In this year there was no food inflation. अपने जो खाने के जो थे, जो चावल है, जो गेहूं है, जो उड़द की दाल है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, जीरो पे था. बाद में पीक पे अभी यहाँ पे है, हम अभी भी यहाँ पे है CCC. दिस इज आवर फूड इन्फ्लेशन. CPI फूड परसेंटेज इन्फ्लेशन. अभी हम सो लाइक दैट व्हाट इज हैपनिंग, वी आर फूड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. ओके, 10% पे है, हमेशा 10% पे है. देयर ऑलवेज व्हाट? 10% इन्फ्लेशन इसमें देखा गया है. रिमेंबर कंपोनेंट्स ऑफ CPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी देखो CPI में सर है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आर वी टेकिंग ऑल द कंज्यूमर गुड्स सर, और आर वी टेकिंग ओनली फ्यू? ये बात याद रख लो आप कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक बास्केट है, एक 500 आइटम्स है उसमें, उसका ही देखते हैं. होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी एक बास्केट है, उसमें भी अपन वैसे ही देखते. ओके, नंबर ऑफ आइटम्स फिक्स्ड है, कम ज्यादा हो सकते बट एक फिक्स रख देते. उनके प्राइसेस इंक्रीज हुए तो इन्फ्लेशन बोलते हैं. ऐसे तो एन नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ, बट वेरी बेसिक है, वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सस्टेनेंस एंड फॉर अवर सर्वाइवल. दोस आइटम्स आर पुट इनटू दैट. ओके, सो ऐसे नहीं कि 1000 रख देते, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रखते. ठीक है. अब CPI कंपोनेंट में है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. हम जब देखो हमारा ये बास्केट है, ये बास्केट में यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे एग है, फिश है, मीट है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये जो एक्लेट्स है, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, लस्सी, फालूदा एंड ऑल, फ्रूट्स है. ओके, यू पीपल आर वेरी लाइक, आई थिंक सो मुंह में पानी आ गया शायद, नहीं? लस्सी, फालूदा एंड ऑल बोले तो, राइट. फाइन. फ्रूट्स like kiwis and all that is there. Pulses, you know that very well. Cereals, products, oil, fats and vegetables. ये पूरा हमारा बास्केट है. ये समझो 2019 में ये पूरे चीजें अपने को 100 रुपए में मिले. 2020 में अगर हमको 110 रुपए में मिले, सो व्हाट इज द इन्फ्लेशन हियर? 10% हुआ नहीं हुआ? राइट. हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी आर कैलकुलेटिंग इन दिस वे ओनली, कि हुआ क्या इन प्राइसेस को, व्हाट हैपेंड टू द प्राइसेस, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ठीक है. ओके सर, फाइन सर. तो अभी देखो सबसे ऊपर कौन बैठे? अपने जो यहाँ पे बैठे, पैसे बढ़ रहे, फूड इन्फ्लेशन 60% तक आ रहा. ओके, 2020 अगस्त तक और बढ़े. देखो यहाँ फिर बढ़ा. यहाँ पे भी आपको टेक अवे क्वेश्चन इज द सेम, दैट अरेंज द फॉलोइंग कमोडिटीज, okay, of consumer price basket in the descending or ascending order of their inflation. तो आप सबसे पहले लिखेंगे पर्पल, पल्सेस के प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे. ओके, पल्सेस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. ओके, पल्सेस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. देयर हाउ व्हाट हैपेंड? ये ग्रीन कलर का है, ये वेजिटेबल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे. सेकंड वन. थर्ड वन, दिस सीरियल्स, नहीं ऑयल्स एंड फैट्स. थर्ड वन है ये, ऑयल्स एंड फैट्स थर्ड वन है. ओके, देन यू आर हैविंग व्हाट? दिस ग्रे milk products, fourth one. Are you getting my point? So you are having here pulses and products, then second one is vegetables. Okay, third one is oils and fats. Like this you have to remember for your examination. This is a sure short questions that they are going to appear in the 2021 prelims. Don't ever neglect it. So whatever I am saying to you, they are like silver, gold, platinum, ruby, diamond, आप कुछ भी बोलो. Okay, so very important things I am discussing. Note down कर लो, better रहता, भूल जाते ना तो बाद में. तो फूड का पूरा हो गया. एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो एग्रीकल्चर में फूड के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में सब खत्म कर लिए. लेट अस सी हमारा माइनिंग क्या कर रहा. माइनिंग हमेशा नीचे ही रहेगा. ओके, डी ग्रोथ में चल रहा बेचारा.
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिकॉज जो भी माइन करते हैं दैट हैज टू बी गिवन टू इंडस्ट्रीज टू मेक इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। लाइक अगर हम अल्यूमिनियम निकाल के देंगे, आयरन निकाल के देंगे, तो ही अपने को स्टील बनाएंगे ना। स्टील कौन बनाते हैं? इंडस्ट्रीज। ये तो कौन निकालते हैं? माइनिंग से ही निकालते ना, राइट। सो इनकी वैल्यू हम एग्रीकल्चर में काउंट करके क्या फायदा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ निकालना हो रहा, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा नहीं। यहाँ पे वैल्यू एडिशन पूरा शुरू यहाँ से हो रहा। दैट्स वाई इनका दो, because see, mining and quarrying is those sectors we use what manually we generally do mining and quarrying, and less machineries are used, and mining and quarrying में we extract natural resources. जो भी सेक्टर में मैनुअल वर्क ज्यादा होता and we use natural resources, we classify all that activities into primary. We classify all these activities into primary. On the basis of this nature, mining and quarrying are actually placed in what? Agriculture and allied activities. Why? Because natural resources we use, because extraction करना है, and manual labor is more. But the thing is, इसका जो भी यूज है ना, वो इंडस्ट्री में ही प्रोसेस हो सकता, हम खाली तो यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई द वैल्यू एडिशन इज एक्चुअली डन इन व्हाट? इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में प्याज आई तो प्याज खा सकते हैं आप, टमाटो आया तो टमाटो वहीं पे खा सकते हैं, उसको इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो माइनिंग एंड क्वारिंग का जो भी अपन मिनरल्स निकाल रहे हैं, whatever we are extracting, it has to go to what? Industry, so that we can make it usable. Otherwise, there is no chance at all. Are you getting my point? Right. So that's why it is very imperative now. ठीक है, इसलिए हम इसकी वैल्यू कहाँ पे काउंट करते हैं? इंडस्ट्री में। इसका एक्टिविटी नेचर के बेस्ड we have put that into agriculture sector, but the value we will count in what? Industry sector. That's why we have put here index of industrial production. तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मिनरल का क्या है? इंडेक्स बोलते क्या? आइटम्स। इंडस्ट्री बोलते क्या? यू नो दैट विच प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारिंग से आ रहे। इनको बदल के हम अच्छे से चीजें स्टील एंड ऑल बनाना। देखो ये आप याद रखो, 25% इतना कम हो गया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सालाना ग्रोथ, साल के ऊपर ग्रोथ। तो लास्ट ईयर से अब कंपेयर करें तो ओके 2020 में -25%। 100 यहाँ पे समझो 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा था, 25% डिक्रीज हो गया। इट मींस व्हाट? 75 का हुआ। सो डी ग्रोथ कहाँ? तो मैक्सिमम डी ग्रोथ हैपन इन व्हाट? अप्रैल 2020 में, जो पूरा लॉकडाउन हो गया था ना, अप्रैल 2020। बिकॉज यू नो दैट सोशल डिस्टेंसिंग करना है, माइनिंग एंड क्वारिंग सब गुम्पू रहते हैं, मस्त नजदीक नजदीक रहते हैं। ये नजदीक नजदीक नहीं चलता। जैसे जैसे हम अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 करें, हम आ गए यहाँ पे 0 तक। तो अभी क्या है? 100 आया तो फिर 100 प्रोडक्शन हुआ, 200 आया तो 200 हुआ। अभी आजकल हम अगेन वी आर सीइंग व्हाट? डाउन साइड। अगेन वी आर सीइंग व्हाट? डाउन साइड। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके सर, मिनरल में इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक सर्वे, पिग आयरन, कोल, copper metal, aluminium, iron ore. These are the main minerals which are forming the majority activity of mining and quarrying, which are forming the majority activity of mining and quarrying. ये बात याद रखो आप। Okay, fine. So यहाँ पे आप देखो, what you have to see is, see, तो ब्लैक पॉइंट को देख लो, सो में ऊपर है और ऊपर नहीं आ रहा। सो आयरन ओर होलसेल प्राइस इसका भी इन्फ्लेशन कम भी हुआ बट बढ़ा, ज्यादा ही बढ़ गया, 20% बढ़ गया इन्फ्लेशन। मीन्स पहले 100 रुपए में एक रॉड आयरन की आ रही थी, अब कितने में आ रही? 120 रुपीज में आ रही। तो 20% क्या हो गया? 20% इंक्रीज इन व्हाट? आयरन ओवर, द ब्लैक कलर वन। 20% आया नहीं आया? राइट। यहाँ पे तो 40% चलेगा। कब? जनवरी 2018 में, जनवरी 2018 में। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, पीछे कैसे गए? ओके सो ये तो इन्फ्लेशन है। फाइन। सो आप देख लो ये फिर चार्ट, यू कैन सी इजिली फाइंड आउट दैट, देखो ये जो येलो कलर है एल्यूमिनियम इग्नॉस्ट, एंड जो ग्रीन कलर है जो कॉपर है, ये तो नीचे भी चले गए एंड दे आर स्लोली पिकिंग अप। थोड़ा कंस्ट्रक्शन अनलॉक होने की वजह से द डिमांड ऑफ ऑल ऑफ दिस इंक्रीज। नो, तो ये पूरे पिकअप हो रहे, ये पूरे पिकअप हो रहे, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। I hope that you liked my lecture, so I'll continue the rest of my lecture in my next class. Thanks a lot for hearing to me, and do share my videos to everyone so that थोड़ा बहुत डेप्थ में बच्चे पढ़ लेते, तो शेयर कर दो। ओके बहुत बड़ी बात है, एंड एक थैंक यू टू यू। बाय बाय, सी यू।